We are going to discuss the procedures of the courts today and what all comes under the procedures, and also that कि इन procedures में जो छोटे छोटे applications लगते हैं उनकी drafting कैसे होती है और उनके specimens और क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए while you are drafting these kind of small applications which is used in these procedures. We are going to discuss them all. Okay, I am going to share my screen with you. Then you will get to know that how things are drafted and what is drafted when. Okay, so there are two types of procedures. One is criminal procedure. The second one is civil procedure. So civil procedures are according to the Civil Procedure Code 1908, and criminal procedure goes by Criminal Procedure Code. I believe that all of you are clear about it, that all the other tribunals that have been established in India, like motor vehicle accident, goes through CRPC. Arbitration is based on Arbitration Act plus CPC. Our Companies Act Tribunal, NCLTs, are based on Companies Act Tribunal and these CPC. So whatever there is, like whatever the procedure is concerned with, उसके साथ साथ एक एक चीज जुड़ती चली जाती है. जो भी आपका प्रोसीजर फॉलो होगा वो अकॉर्डिंग टू सीपीसी फॉलो होगा. अदरवाइज एक्ट में प्रॉपर प्रोसीजर लेट डाउन होगा कि कौन सा प्रोसीजर हमें फॉलो करना है while taking while the court goes in work. Okay, now I am going to discuss two procedures, and properly I will tell you that what kind of procedures are followed while in civil courts as well as in the criminal courts. Okay, so when a civil suit starts, there are two types of civil suits. One is ordinary suit, the other one is summary suit. Ordinary suits goes by a proper procedure. However, summary suits have a shorter time period, and it is mostly with summary procedure it is seen that mostly cases disposes of very easily and in bit of fast forward they speed up the procedure. So जब हम सिविल कोर्ट की बात करते हैं तो दो तरीके के प्रोसीजर्स है. वन, इट विल बी ऑर्डिनरी सूट, सेकंड विल बी समरी सूट. आई बिलीव दैट यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस. ओके, तो जो पहला ही प्रोसीजर होगा वो होता है स्टार्ट नोटिस सेंड करने से, लीगल नोटिस सेंड करने से सिविल कोर्ट्स में. तो पहले आप वैसे तो दो तरीके के लीगल नोटिस होते हैं. एक होता है नॉर्मल लीगल नोटिस जिसमें आप सामने वाले को सिर्फ इतना बता रहे हैं, उसे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रही है उसके कुछ एक्ट या ओमिट करने से, तब हम एक लीगल नोटिस भेजते हैं. और एक होता है सेक्शन 80 सीपीसी का लीगल नोटिस. ओके, सेक्शन 80 का सीपीसी का जो नोटिस होता है उसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं मैंडेटरी लीगल नोटिस. That legal notice is required when you are suing PSUs, public service units, second government officials, third Union of India itself or any state government. If you are suing such kind of entities, you have to serve them with legal notice. That is section 80 CPC mandatory notice. Second thing is that when you are suing some private organization also, then also it is mandatory that you should serve them with legal notice as prescribed in other, like if you are going for NCLT or bankruptcy codes and all, then the proper procedure is given under IBC. बैंक्रप्सी एक्ट में आपको प्रॉपर प्रोसीजर मिलेगा लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट होना है और कैसे उसको सेंड करना है, एंड विद इन हाउ मच टाइम दैट प्रोसीजर विल स्टार्ट.
फर्स्ट थिंग। सेकंड इज सेक्शन 80 का जो है, अगर वो नोटिस जा रहा है तो प्रॉपर उसका वही लिमिटेशन और वही सब प्रोसीजर्स काउंट होंगे जो सीपीसी में लेट डाउन है। तो सीपीसी के लेट प्रोसीजर में ये है कि सेक्शन 80 में अगर लीगल मैंडेटरी नोटिस जा रहा है, लीगल नोटिस, तो दैट विल गो फॉर लाइक दैट विल काउंट अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। जिस डेट से गया है उसके 1 मंथ तक यू हैव टू वेट फॉर देयर रिप्लाई। आफ्टरवर्ड्स यू कैन गो फॉरवर्ड विथ योर पेटिशन। ठीक है, तो प्लेंट फाइल होता है। फर्स्ट थिंग जो फाइल होती है कोर्ट में होती है प्लेंट। ऑर्डर 6 में प्लेंट दिया हुआ है, ठीक है, सीपीसी में ऑर्डर 6 में प्लेन दिया हुआ है। एंड उसमें ये भी बताया है कि हाउ अ प्लेंट इज ड्राफ्टेड। I will show you written statement also and a plaint also. There is a proper procedure that is laid down in CPC itself. Second thing, after जब आपकी फाइलिंग सूट फाइल हो जाता है, तो अगर आप लोगों ने सूट्स देखा होगा या फिर द गुड वाइफ देखा होगा, तो यू would have heard a term called subpoena. But in our Indian context, a notice is served by way of the judge. Okay, so when a judge issues notice, then he has admitted the suit as well, and he has called for written statement also. Okay, first there will be a plaint. Second thing, after service of notice by way of magistrate or civil judge, third thing which defendant will come up with is a written statement. And if he is having any kind of counter claim, if he is having a claim which he is also having on the other party, like if I am a defendant, if A is, for example, let's take an example, if A is a defendant and B is a plaintiff. Okay, so if B has filed a petition in the court for recovery of his amount or something, then B is also having a claim against B. A is also having a claim against B. At that point of time, instead of filing entire new suit, he can go go forward with a counter claim along with his written statement. So that is a procedure that is laid down in CPC to avoid multiplicity of suits. Okay, क्योंकि अगर मैं करने लगी और दूसरे ने भी मुझ पे कर दिया, तो there will be like 3 to 4 suits and in different courts. To save the multiplicity and save the time of the court, plus it also saves the cost of the court. Okay, so this is how ordinary suit starts rolling. Okay, but when we talk about summary suit, then you place a legal notice. Also with that also 1 month waiting period. After the waiting period is over, then you go for filing your summary suit under order 39. Okay. Oh, sorry, 37. I'm sorry. 39 is of permanent and temporary injunction. 37 is your summary suits. So order 37 laid down the procedure of summary suits. According to that procedure, once the notice is served to the other party, the defendants, when it is served to them, तब उनको सिर्फ 10 दिन का टाइम मिलता है, only 10 days time to file their leave application. Okay, they will find a request that is actually a request. They have to file that request before the court. Court will approve or disapprove that request to take their claim or their reply on record. If they take their reply on record, at that point of time, that entire summary suits converts itself automatically in ordinary suit. So whatever till this time has happened in ordinary suit will start commencing in the summary suits as well. So ये convert हो जाता है, ठीक है. In case अगर मैंने जो रिक्वेस्ट फाइल की है कोर्ट में, अगर वो एक्सेप्ट हो गई, तो कोर्ट मेरा रिप्लाई लेने के लिए मुझे 30 days का टाइम दे देगा. And after that 30 days time, I have to file my written statement along with the counter claim, if any. Okay.
and then again this suit will become ordinary suit. However, if the request has been denied, then court jumps onto the evidences, take note of the evidences, ask the counsel to clear all the uh, doubts the court has, and then they pass the judgment. That is simply a small procedure of summary suit. Okay. Summary suits are mostly filed in the cases where already parties are having all the evidences in their favor. Like if I have to recover 50,000 rupees from a person, I have a bill, I have the uh, I have a written copy of his admission that he has to pay me 50,000 rupees, and there is this transaction that I have showed that I have given him 50,000 rupees on such and such date, and he owes me back that 50,000 rupees. If I fulfill all the criteria of summary suit, after serving with the legal notice, I can go forward with the summary suit. And when the court finds out that this is the entire procedure has been done, they can actually allow my petition. And if his defense is rejected and his leave application is rejected, then the court decides it as a summary procedure. Okay. But if we come back to ordinary suit, let us come back to ordinary suit. Then after filing of written statement, once the written statement, and if there any counterclaim is present, if both of them are filed in the court, then one more chance is given to the plaintiff to file his reply to the written counterclaim, as well as he can file replication to the written statement. Okay, and this all is like replication is discretional. Court can allow it or disallow it, and there is no specific time for filing a replication. However, court allows 2 weeks to 4 weeks time for filing a replication. Okay. After this, if there is any replication or something, after this court asks both the parties, क्योंकि इन दोनों petitions के साथ जो दोनों एक plaint गया है और जो written statement गया है, दोनों के साथ दोनों parties अपनी set of evidences file करती है. CPC is run over documenting documentation and document evidences. तो basically जो भी प्लेंट फाइल होता है फर्स्ट मूवमेंट पे, उस प्लेंट में ही सारे एविडेंसेस की लिस्ट होती है. लिस्ट ऑफ एविडेंसेस लास्ट में हम लगाते हैं. ठीक है. तो जो लिस्ट होती है उसके हिसाब से आपको एडमिशन और डिनायल का एफिडेविट फाइल करना होता है सेपरेटली. सो दैट स्टेज इज कॉल्ड एफिडेविट ऑफ एडमिशन एंड डिनायल. तो जो भी एविडेंसेस मुझे एडमिट करने हैं, मैं उन एविडेंसेस के सामने एडमिशन कर दूंगी, एडमिशन लिख दूंगी, और जो मुझे डिनाई करनी है उसके सामने मैं डिनायल लिख दूंगी. ओके, लेट मी शो यू बाय to get whenever you start drafting with a senior advocate or somebody, they will provide you with this kind of format so that you can have help from these. Okay, now whatever list of documents we have received till 22nd October 2017, हम उसकी admission denial यहाँ पे लिख रहे हैं. ठीक है. So we are mentioning that until what period we are filing that admission and denial. Okay. Now this is the now the entire documentation is very small, very limited in this case. That is why there is only 3 things we are filing here. Okay. So we have written annexure P1, whatever they have given name of that annexure, we are going to write that like pedigree table is the table which you file along with succession suits. Okay. So it's a pedigree table which is admitted. We are not saying that we are not admitted or that kind of thing. Okay. Secondly, there is this site plan of the property which we are going in the court with which we want to partition the entire of this property has to be partitioned between these guys. So we are admitting that site plan also. Now this is bank statement, dealer search, receipt of Reliance India Mobile. Okay, we have denied it as being photocopy and for want of knowledge. So for a fact, you should know that evidence
Indian Evidence Act does not allow photocopy to be presented as a evidence until and unless you take leave of court. Leave of court, I am again and again using a word which is called leave of court. Okay, leave of court means that you request court that we want to go ahead with this kind of thing, and that request is called leave of court. Okay, so court allow your application. If the court allows your application, then only you can come up with photocopies. Otherwise you have to file all the original documents. You can do one thing with your original documents. If you feel that these are very important to me, then you can file them, that whenever it is required, I will appear before the court and show those documents to the court. Then this kind of request gets, mostly these kind of requests actually gets approved by the court. Otherwise, otherwise otherwise court takes the documents, keep them in their custody, and you can obtain certified copies from the respective judge. Okay, so this is a small application. This is again a small application which is filed before the court at the stage of admission and denial. Okay. Till here, any doubt or something? Anybody, any doubt? Then I will move forward. Okay. So this is, we have discussed in admission and denial. Okay. Then after the stage of admission and denial is over, court orders of filing of affidavit, which is evidences. Okay. In civil courts, because the cross examinations and your chief of examination is your evidence affidavit that you file at the time of after the stage of admission and denial, and this entire set of evidence जो आप documentation proof provide करेंगे कोर्ट को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, that will be based on your plaint, and no other mode of no other new admission of evidence is allowed until you move a separate application of allowing admitting additional evidences. अगर additional evidences आप डालने वाले हैं, so you have to file another application. Court will allow that additional evidences, only then you can come up with your new evidences. Otherwise, whatever you have provided at the stage of plaint and replication, that will be your final evidences. Otherwise, you have to file application. Clear? So after this, you have to file evidence by way of affidavit. Again, वही affidavit का starting में oath होगा. Later on, एक channel of evidences चलता है जिसके ऊपर cross examination होता है. Let me show you that also.
Okay, this is evidence by way of affidavit. It's of a consumer court, but entire जो भी इसमें format है, that is used in all district and civil courts. Okay. जो हाई कोर्ट में जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा जस्ट इसमें एक इंडेक्स ऐड हो जाएगा और साथ में एक और ओथ होती है उसमें, दैट entire paragraph gets added into it. I am not finding that petition in my computer right now. If I'll find it somewhere else, then I'll forward that in your WhatsApp group. Okay. So this is evidence by way of affidavit. अब see, ये केस है कोर टीम ऑफ तेलंगाना versus Merchandwiser. Merchandwiser was a company which was providing merchandise to this team of Telangana. Telangana is a fest, okay, that is done in Kashmiri Gate. IIT है कश्मीरी गेट में, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एक पूरा फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं तेलंगाना नाम से. So they organized a fest और Merchandwiser was sponsoring partner with them. इन्होंने उनको merchandise provide करनी थी, but what they did is just before that day when this entire event was going to happen, उससे पहले एक दिन पहले they received all the faulty this thing merchandise. Okay, the merchandise was faulty, t-shirts were not up to the mark, and the mugs and other things were not given to them. Okay, so we filed this case on their behalf, on the behalf of these students. Okay, so जब हमने एविडेंस फाइल करना था तो हमने बाय वे ऑफ एफिडेविट फाइल किया था. So this is how an affidavit by way of evidences go by. Okay, we are deposing. ठीक है, that is why this is written the deponent, this line. Okay, because we are deposing, that's why this entire thing, ये जो भी हमने plaint में लिखा था, that is copy paste over here, but one line which we have changed in plaint and here is that the deponent states that the complainant had placed. अब जो ये complainant had placed तक जो line है, this is new and the entire thing is from the plaint. Okay, whatever goes in the plaint comes in the affidavit also, but just in the plaint we are just stating the facts, and in evidence we are actually stating deposing the facts on oath. Okay, and on this basis only we are going to cross examine. Okay, so we have to understand whenever we are drafting an evidence affidavit, at that point of time we have to take care about everything, like from whatever we are putting in plaint or written statement, that should corroborate with the evidence affidavit. If anything goes both way, like if everything goes opposite way, your evidence affidavit itself gets the court cannot allow that in the court. Okay, it will actually reject your evidence affidavit and you cannot cross examine later on. So just to take care that you get chance to cross examine the other party, you have to understand that evidence affidavit should be in corroboration with the plaint or written statement for whatever party we are. Okay, because you cannot be the same party, you cannot be for the same party. Okay, so in this case we were for the complainant, so we have filed the evidence affidavit from the side of complainant. Okay, so this is how we are deposing, and this line comes in the every paragraph we are talking about. This line comes in every paragraph. Like the deponent states that she made part payment. The deponent states that earlier the order delivery was. The deponent states that immediately. Okay, this is how entire plaint comes over here. Now, if I go to the last part, here there is this evidence affidavit is not having that part. However, when हम district courts में या high court में जब file करते हैं, तो जो भी list of exhibits हमने अपने plaint में लगाया है, last में list of evidences लिख के, उनको हम list of exhibits बना के यहाँ last paragraph में डालते हैं, इस paragraph के ऊपर.
पैराग्राफ नंबर 13 जो है इसके ऊपर एक पैराग्राफ आता है, अगर मुझे मिल गया मेरा एविडेंस एफिडेविट दूसरा वाला, तो आई विल शेयर दैट इन व्हाट्सएप ग्रुप. यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ओके, एंटायर पैराग्राफ कम्स एंड हम उसमें एग्जिबिट्स लिखते हैं. उन एग्जिबिट्स का मतलब होता है अगर हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं तो हम एग्जिबिट्स लगाते हैं. अगर हम फोटोकॉपी या फिर किसी डॉक्यूमेंट की ट्रेल फाइल कर रहे हैं जो कि फोटोकॉपीड है या फिर डुप्लीकेट है, तो हम उसे मार्क करते हैं. मार्क, ठीक है, MARK, मार्क फॉर द फोटोकॉपीज एंड एनी डॉक्यूमेंट विच इज इन डुप्लीकेशन, तो उसको मार्क बोलते हैं. और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे उनको हम एग्जिबिट्स करके फाइल करते हैं. ठीक है, so this is how an evidence affidavit is filed in the court. ठीक है, अब यही एविडेंस एफिडेविट पे क्रॉस एग्जामिनेशन होती है. ठीक है, पहले प्लेंटिफ की होगी तो उसको बोलते हैं प्लेंटिफ एविडेंसेस. उस पेज को बोला जाता है प्लेंटिफ एविडेंसेस. जब प्लेंटिफ एविडेंसेस खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम करते हैं डिफेंडेंट एविडेंसेस. वो भी इसी तरीके से एक एफिडेविट फाइल करेंगे, फिर प्लेंटिफ पार्टी जो होती है, जो ऑपोजिट काउंसिल है, वो क्रॉस एग्जामिन करेगा. ठीक है, इज दिस क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट? No doubt till now? Okay. So after the chief, this is your evidence affidavit shall be called chief in examination and your cross examination. And if you require while cross examination, अगर कोई भी new बात निकल के आ जाती है, while cross examining you get to know that अच्छा ये भी हुआ था, या फिर we should call another witness on stand. At that point of time, you can file an application before the court and ask for re-examination. If court satisfies, then re-examination allow करते हैं, तब re-examination आता है. तो 3 stages of evidences हैं: your chief examination, cross examination and re-examination. ठीक है, ये 3 evidences आपके procedure में चलेंगे और this is followed as it is in criminal procedure also. Okay. Now इसके बाद जब क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो जाते हैं, योर री एग्जामिनेशन इज ऑल्सो ओवर, देन देयर इज दिस फाइनल आर्ग्यूमेंट. आफ्टर द फाइनल आर्ग्यूमेंट इज ओवर, जजमेंट कम्स अप. एंड इन सिविल प्रोसीजर कोर्ट जजमेंट के साथ डिक्री भी आती है, ओके, जिसको हम कहते हैं फाइनल डिक्री. इफ अगर अभी तक सिविल प्रोसीजर कोर्ट पढ़ लिया होगा तो 2 तरीके की डिक्रीज के बारे में ऑलरेडी पता होगा. एक होती है प्रिलिमिनरी डिक्री और एक होती है फाइनल डिक्री. तो प्रिलिमिनरी डिक्री जो होती है, प्रिलिमिनरी डिक्री जो होती है, वो व्हाइल योर केस इज गोइंग ऑन, वो तब आ सकती है और वो बाइंडिंग हो सकती है दोनों पार्टीज पे. ठीक है, बट वंस द कोर्ट डिसाइड्स द केस, वो अपना या तो वो फाइनल डिक्री में चेंज हो जाएगी, अदरवाइज whatever thing that decree was controlling will go off. Okay, and the final decree is binding until it does not go in appeal. Okay, अगर stay हम obtain कर लेते हैं उस डिक्री पे, तब तक वो डिक्री will be in course. Okay, so there are 2 types of decree and there is final order also. Order and decree का दोनों difference है. That will be मैंने अगर अलग से कोई क्लास ली तो मैं उसमें ऑर्डर और डिक्री भी समझा दूंगी ताकि एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन समझ आ जाए दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है. ठीक है, जजमेंट के साथ जो हेलो मैम, एक्चुअली मैम 3 stages of evidences, मैम, re-examine, cross-examine and one more. One is your chief examination, जो सिविल प्रोसीजर में बाय वे ऑफ एफिडेविट फाइल होता है. Yes, ma'am. Second is your cross examination, that is done before the court on the basis of chief. Okay. Yes, ma'am. And third is your re-examination. अगर आपको फील होता है that in your cross examination a new fact come forward
and you want some other documents to come in the course, in the procedure, and you find that very important for your case, you can file in specific application showing that this is important for my case, so that re-examination should be allowed. So re-examination court allow या disallow करते हैं on the basis of importance of that witness or evidence. Okay, I was talking Yeah. about additional evidences. Let me show you how additional evidences are filed in the court. Application for additional evidence read with section 151 of CPC. अच्छा, section 151 of CPC comes in every civil application. ठीक है, कोई भी सिविल एप्लीकेशन जाएगी तो सेक्शन 151 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड हम ऐड करते हैं हमारी ड्राफ्टिंग्स में, बिकॉज इट गिव्स discretionary power, immense discretionary power to the court. Court can do anything if we are requesting any application with section 151 of CPC. Okay, it give them immense power to order anything. Okay, so this is an application of additional evidences. I am telling first, I have told that why I am filing this additional evidences in the court and how it is important to come over the record. ठीक है, तो जो भी मुझे डालना है मैंने annexure wise यहाँ पे फाइल किया है. Later on मेरी prayer है, it is therefore humbly prayed that the complainant may kindly be allowed to adduce their additional evidences. Okay, I am requesting the court to adduce my additional evidences. Court can allow it and disallow it. Okay, in this case it was allowed. Okay, and along with this we file additional evidence by way of affidavit. This was application, and after application I have filed proper additional evidences by way of affidavit. This go hand in hand together. Okay, and if court disallows it, they will return this to you. If they allow it, then इस पे भी cross examination होगा. Okay, and this has proper stage. अगर additional evidences चलते हुए में अगर आपने फाइल करे हैं, तो with fine it can be allowed with the discretion of the court. Otherwise, अगर evidence की stage नहीं start हुई है and then you want to come up with additional evidences, at that point of time court can allow it with the specifying that why it is important for the case. That's it. Okay, but if it is it becomes very difficult if it is filed along the cross examination is going on. Okay, so this is additional application. Now judgment you all have seen. Otherwise I will send you one judgment in our favor, which was in our favor. I will send you the draft of you that that will be containing a judgment and as well as it will be containing a decree. Okay, so जो इसके पीछे जो importance है ना कि डिक्री क्यों फाइल की जाती है, एक्चुअली डिक्री में बताया जाता है कि एक्चुअली में क्या क्या चीजें हम अलाउ कर रहे हैं जो जिस भी पार्टी के फेवर में हम दे रहे हैं. तो फिर उसी डिक्री के बेसिस पे आप एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं. जजमेंट एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है. जजमेंट का मीनिंग ही होता है कि इट इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट जिसमें आपके फैक्ट्स फिर क्वेश्चंस जो भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड डिनायल और उस टाइम बनाए जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं, इशू वाइज प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाता है कि किस इशू में हमें किसका पार्ट अच्छा लगा, किस इशू में किसने प्रूव कर दिया, वो सब जज बताता है. उसके बाद वो अपनी एक डिटेल जजमेंट देता है. तो जजमेंट एक डिटेल स्टेटमेंट होती है जज की, दैट हाउ ही कंक्लूडेड दिस केस. ओके, but the decree is a small statement and that decree actually hold everything, that कितना अमाउंट दे रहे हैं, कितने अमाउंट की कॉस्ट लगी है, कितना अमाउंट मिलेगा या फिर इसको एग्जीक्यूशन कैसे कराया जाएगा. ठीक है, तो वो डिक्री में होता है, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड होता है डिक्री में. ठीक है, दिस इज योर सिविल प्रोसीजर.
दिस इज आई एम डन विद योर सिविल प्रोसीजर. अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो जस्ट आस्क मी राइट नाउ, देन आई विल क्लियर इट. फिर मैं आपको ना छोटी छोटी एप्लीकेशंस दिखाती हूँ जो वाइल जब सिविल प्रोसीजर चल रहा होता है तो हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस जो छोटी छोटी होती हैं जो हम डेली बेसिस पे फाइल कर देते हैं कोर्ट में, वो दिखा देती हूँ मैं आपको. मैम जो समरी सूट होता है हम्म. उसमें ये होल प्रोसेस होती है विद इन 10 days ओनली? नो 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 नो, समरी सूट में आपको सिर्फ आपका रिप्लाई फाइल करने के लिए लीव एप्लीकेशन फाइल करनी होती है. वो लीव एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपको 10 days मिलते हैं. अगर आप वो लीव एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आपको 10 days मिलेंगे. अगर वो 10 days खत्म हो गए तो आप लीव एप्लीकेशन भी फाइल नहीं कर सकते. तो फास्ट कोर्ट जो होते हैं समरी सूट के लिए, तो फास्ट कोर्ट में जैसे नॉर्मली तो ऑर्डिनरी सूट से कम टाइम लगता है, तो देयर इज नो टाइम बाउंडेशन फॉर इट. देखिए, जो समरी सूट है ना, जो हमने समरी सूट बनाए हैं वो भी सिविल कोर्ट्स ही फॉलो कराती हैं, सिविल कोर्ट्स ही उन्हें चलाती हैं. लेकिन व्हाट हैपेंस इज जब 37 में फाइल होता है तो उसका प्रोसीजर ही यही है. पहले आप प्लेन फाइल करेंगे, फिर कोर्ट नोटिस कर देता है. ठीक है, नोटिस करने के बाद 10 days का टाइम मिलता है डिफेंडेंट को. ठीक है, अगर डिफेंडेंट उस टाइम को एग्जॉस्ट कर देता है तो उसको कॉन्डोनेशन फाइल करनी होती है. अगर वो कॉन्डोनेशन अलाउ हो गई तो फिर उसे 10 दिन का टाइम मिल जाएगा, या जो भी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन, 2 दिन 1 दिन जितने का भी टाइम दे कोर्ट, लेकिन 10 दिन एक्सीड नहीं हो सकते. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर अपनी लीव टू डिफेंड फाइल कर देता है तो कोर्ट एक जो भी डेट फिक्स होगी उस डेट पे कोर्ट सुनता है उनकी बात. ठीक है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि इस बंदे को डिफेंड करना देना चाहिए, इसका कुछ क्लेम है, तो कोर्ट उसको कन्वर्ट कर देता है ऑर्डिनरी सूट में. अगर कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, इफ कोर्ट थिंक्स कि कोई बात नहीं है इसमें, इसका केस नॉर्मल नहीं है और ही इज जस्ट बाइंग टाइम, तो कोर्ट कैन डिसअलाउ इट एंड देन गोज बैक टू दी लिसनिंग टू द एविडेंसेस. अच्छा, समरी सूट में क्या होता है ना, प्लेंट के साथ ही एविडेंस फाइल हो जाते हैं. अच्छा, ठीक है, जो भी हम फाइल कर रहे होंगे प्लेंट, उसके साथ ही एविडेंस फाइल हो जाते हैं कि नोट, ताकि कोर्ट को पता चल जाए कि हमने जो भी प्लेंट फाइल किया हमने पूरा सेट फाइल किया. ठीक है, फिर उसके बाद कोर्ट आपसे क्लैरिफिकेशन ले लेगा डाउट्स की कि हमारे ये डाउट्स हैं, इन्हें क्लियर कर दो. अगर तो कोर्ट को लगेगा कि ठीक है इनको अलाउ करना चाहिए तो कोर्ट अलाउ कर देता है, अदरवाइज कोर्ट डिसअलाउ भी कर देता है बहुत टाइम पे समरी सूट से. ठीक है, तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि समरी सूट में प्लेंटिफ के पक्ष में ही फैसला आ जाए. देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे प्लेंटिफ के ही सूट को डिसमिस कर दिया गया लेटर स्टेजेस पे, जब डिफेंड जैसे लीव टू डिफेंड भी फाइल हो गई हो तब भी कई बारी केस रिजेक्ट हो जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में. ठीक है, व्हाट हैपेंस इज जब आप कोर्ट में जाओगे ना, तो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू अडेप्ट कि ओके अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है. क्योंकि in most of your internship you will not get this kind of knowledge because there are they don't have that much of time, but I find that as an intern you should know this कि ये जो entire procedure है इसी से आपकी internship ना बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कोर्ट में एक्चुअली चल क्या रहा है और हम कौन सी स्टेज पे खड़े हैं किसी कोर्ट में. ठीक है, यस चलेगा. Ma'am, how do we initially decide that a suit is an ordinary suit or a summary suit? I mean, what is the criteria for deciding that? Okay, this is a good question. Let me tell you. Actually क्या होता है, ऑर्डिनरी सूट जो होता है, ऑर्डिनरी सूट जो होता है वो नॉर्मली फाइल होता है विद नोटिस, प्रॉपर एक प्लेन फाइल होगा और उस पे लिखा होगा. अगर उसके साथ आपने ये नहीं लिखा ना कि अंडर ऑर्डर 37 ऑफ CPC, so it means that it is an ordinary suit. Okay, that suit is instituted under section 26 of CPC. So section 26 of CPC says institution of suits. Okay, so जो institution of suits, अगर order 7, order 8, order 7, order 6, order 7, order 8. Okay, order 6 is your plaint,
Order 7 is your rejection of claim and order 8 is your written statement. ठीक है, तो जब हम रिटन स्टेटमेंट भी फाइल करते हैं तो उसके साथ हम एक एडिशनल एप्लीकेशन फाइल करते हैं जो कि होती है ऑर्डर 7 की. ठीक है, ऑर्डर 7 रूल 11 की हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं जिसमें हम रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए फाइल करते हैं कि ये जो प्लेंट है वो किस किस वजह से रिजेक्ट हो जाना चाहिए. जैसे कि फर्स्ट होता है कॉज ऑफ एक्शन ये अराइज नहीं हुआ, सेकंड है कि प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं फाइल हुई है, थर्ड है प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है. ठीक है, या फोर्थ उसमें होता है कि प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ है प्लेंट फाइल करने के लिए. ठीक है, तो अगर इन सब चीजों में फॉल करता है केस तो उसे रिजेक्ट भी करा जा सकता है. ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं. तो अ कोर्ट नोज द मोमेंट अंडर ऑर्डर 37 कम्स इन द कोर्ट, दे नोज दैट दिस इज अ समरी सूट. फर्स्ट थिंग. ठीक है, सेकंड इज ऑर्डिनरी सूट्स में नोटिस सर्व होने के बाद रिटन स्टेटमेंट अपने आप 30 डेज में फाइल होनी होती है. दिस इज अ ऑटोमेशन पीरियड. ओके, इट इज एन ऑटोमेटिक पीरियड एंड इट स्टार्ट्स द डे द नोटिस सर्व्स टू यू. कोर्ट का समन आता है, समन होता है, अगर देखा हो किसी ने, तो नहीं देखा होगा तो मैं अपनी फाइल में से निकाल के दिखा दूंगी. ठीक है, तो समन आता है, जिस दिन का वो समन है उस दिन से आपके काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है 30 डेज की. ठीक है, आपको सिर्फ उस दिन तक की आप लिमिटेशन ले सकते हैं. अगर आपको अपना एक्सटेंशन लेना है तो आप उस दिन की ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए 15 जून को आपको मिली समन, समन का डेट है 15 जून. ठीक है, और आपको मिला वो 17 जून को है. तो 17 जो 2 दिन का है ना, वो आप जरूर कोर्ट में कह सकते हैं कि सर 17 को हमें मिला था, दैट इज वाई हम 17 टू 17 काउंट कर रहे हैं. और इसमें ना एक और मतलब एक राइडर है, जैसे मान लीजिए 30 डेज का टाइम आप एक्सीड कर गए और आपने फाइलिंग नहीं की, आपको नोटिस भी सर्व हो गया और कोर्ट को पता है कि नोटिस सर्व हो गया है, क्योंकि कोर्ट के पास एक प्रॉपर रिपोर्ट आती है कि नोटिस सर्व हो गया है, किस बंदे को सर्व हुआ है, कौन था जिसने सर्विस ली, वो सब आता है कोर्ट में. ठीक है, और कोर्ट में 3 तरीके से सर्विस होती है, स्पीड पोस्ट, कोर्ट मास्टर और आपका कुरियर. ठीक है, तो तीन मोड से जाती है, तो तीनों मोड की जो रिपोर्ट होती है ना वो कोर्ट के पास आ जाती है. ठीक है, अगर आपको सर्विस हो गई है और आप फेल कर गए हो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, तो आपको अपीयर होना पड़ता है कोर्ट में और लीव फाइल करनी पड़ती है फिर से कि हमें थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए. तो वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो फिर से टाइम दे सकते हैं, बट दिस टाइम कैन नॉट एक्सीड 90 डेज. ठीक है, अगर सॉरी 60 डेज, सॉरी 60 डेज. अगर 60 डेज से अबव चला गया है तो कोर्ट शायद हो सकता है कि डिफेंस ही खत्म कर दे, रिटन स्टेटमेंट ही ना आने दे. सिर्फ आपको फिर एक ही राइट मिलता है, वो मिलता है कि जब एविडेंस एफिडेविट फाइल होता है बाय प्लेंटिफ, जब वो फाइल करेगा तो आपको लिमिटेड राइट मिलेगा उसे क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, जो रिकॉर्ड पे लिया जाएगा. अदरवाइज आपको कोई राइट नहीं मिलेगा. यू विल बी tried as ex parte, the party which did not came on record. Okay, am I clear in this? तो ये आपका entire procedure है. ठीक है, any question? Any other questions? I think none. So I am sharing these small applications with you. Okay, this is the application for condonation of delay in refiling of the quashing petition. ये this is high court application. ये condonation delay की application है हाई कोर्ट में. तो अगर मतलब हाई कोर्ट का प्रोसीजर ऐसा है या सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर ऐसा है कि अगर आप मान लो कि आप फाइल करने गए कुछ, आपने उसको रीफाइल करने में देरी कर दी है ना, तो भी आपको कॉन्डोनेशन लगानी पड़ेगी, जो कि रजिस्ट्रार अलाउ करेगा. मोस्टली जो रजिस्ट्रार्स होते हैं वो भी जजेस होते हैं. ठीक है, जूनियर जजेस जो होते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठते हैं एंड द सीनियर्स आर इन द कोर्ट. ओके, सो इन दिस केस दिस इज अरविंद कुमार वर्सेस द स्टेट. अरविंद कुमार इज अ पुलिस ऑफिसर जिसके खिलाफ हमने केस फाइल किया था. ओके, सो इस केस में
जो रीफाइलिंग है क्वेश्चन पिटीशन डालने की, उसमें डिले था, इसलिए हमने कॉन्डोनेशन फाइल किया था। अब यू कैन सी हमने यहाँ लिखा है अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, 482 गिव्स इमेंस पावर टू हाई कोर्ट इन क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 482 जो है वो हाई कोर्ट को इमेंस पावर देती है कुछ भी ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, तो जो भी हम क्वैशिंग, कॉन्डोनेशन, जो भी हमें फाइल करनी है हम 482 में फाइल करते हैं। ठीक है, और ये क्वैशिंग पिटीशन है, ये छोटी छोटी एप्लीकेशन है, ये सिर्फ 2 पेज की एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ इतना लिखा है कि हमने क्वैशिंग पिटीशन फाइल की थी, जिसे फाइल करने में रिकंसिडर करते करते हमें 54 डेज लग गए, इसलिए हम ये दोबारा फाइल कर रहे हैं। एंड द डिले इज इनोसेंट एंड इट शुड बी अलाउड, मोस्टली दीज आर अलाउड डिस्पाइट ऑफ डेज एंड ऑल। हाउएवर अगर मान लीजिए कि रीजनेबल टाइम हम एक्सीड कर जाते हैं, उसके बाद फिर हमें कॉस्ट लग जाती है फाइल करने के लिए। ठीक है, अगर हम कॉस्ट फाइल करेंगे तभी हमारे को अलाउ करते हैं ऑन रिकॉर्ड, अदरवाइज डिसअलाउ कर दिया जाता है। ठीक है, so this is one application now। अब ये एक एफिडेविट है जो कि हाई कोर्ट में फाइल होना था। दिस इज अमित जैन वर्सेस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ओके, वी आर फॉर अमित जैन। ये एफिडेविट ये स्टेट कर रहा है कि मैंने ऑलरेडी इंडियन ऑयल को 3,17,000 दे दिए हैं और मैं उनको अब 1 लाख और दे रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे अलाउ किया जाए थोड़ा सा और टाइम, ताकि मैं एग्जीक्यूशन के लिए पैसे और अरेंज कर सकूं। ठीक है, तो ये एफिडेविट हमने हाई कोर्ट में इसलिए फाइल किया था ताकि हमें स्टे मिल जाए। ओके, तो ये शॉर्ट एप्लीकेशंस है जो हमें वाइल प्रोसीजर फाइल करनी पड़ती है। देयर वाज दिस एग्जीक्यूशन व्हिच वाज गोइंग इन साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके कॉन्सोनेंस में हमने हाई कोर्ट में स्टे लगाया था। ठीक है, तो हमारा जो स्टे था वो इसलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि हमने जो साकेत कोर्ट में एग्जीक्यूशन में पैसे देने थे वो हमने कम दिए थे। फिर हमने उसको हाफ द अमाउंट करके जब हमने उसे पे किया तो हमने एफिडेविट लगाया साकेत कोर्ट में भी और हमारे हाई कोर्ट में भी कि हमें अलाउ कर दिया जाए, जिसके बेसिस पे हमें स्टे ग्रांट हो। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सिर्फ इस बात का एफिडेविट है कि हमने 12 लाख के आसपास पे कर दिए हैं और बाकी अमाउंट के लिए हमें टाइम दे दिया जाए और हमारी एग्जीक्यूशन पे स्टे भी लगा दिया जाए। ठीक है, तो दिस इज अ स्मॉल एफिडेविट, दिस इज ऑल्सो 2 पेज एफिडेविट। अब हाई कोर्ट में क्या होता है ना, ये जो इंडेक्स दिख रहा है ना फर्स्ट पेज पे, हाई कोर्ट में हर चीज की फाइलिंग के साथ ये इंडेक्स जाएगा, along with your FAO numbers, along with your miscellaneous applications, जो भी आप लगा रहे हैं उन सब के साथ ये जाएगा। ठीक, एक ये लीगल नोटिस भी मैं दिखा देती हूँ, ये शॉर्ट लीगल नोटिस है। दिस इज अ लीगल एंड डिमांड नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ द सैलरी। ठीक है, तो शी इज अ डॉक्टर और इनकी सैलरी रोक ली थी, उसके लिए हमने ये लीगल नोटिस सर्व किया था। तो दिस इज अ लीगल नोटिस, और इसमें जैसे मतलब इसमें मैं आपको रूल्स बता देती हूँ। वैसे तो एक वीडियो है मेरी लीगल नोटिस पे, जो कि वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब पे प्रोवाइडेड है। लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट किए जाते हैं और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए वो सब है उसमें। तो अगर लीगल नोटिस के बारे में जानना है तो उसको आप एक बारी देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि हाउ लीगल नोटिस आर ड्राफ्टेड। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम लिखेंगे फैक्ट्स, पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे हम किसके हमारा क्लाइंट कौन है, फिर हम फैक्ट्स लिखेंगे कि हम किस बेसिस पे आपको ये नोटिस भेज रहे हैं। सेकंड हम फिर उसमें लिखेंगे कि कहाँ से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है that you the addressee hereby is informed that there are arrears of rupees 12,29,985 in total of provident fund ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये जो है ना, ये जो पैराग्राफ है जो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे, ये जो पैराग्राफ है इसमें हमने पूरा ब्रेकअप ऑफ अमाउंट लिखा है कि ये क्या क्या अमाउंट है, कैसे कैसे हमारा ये अमाउंट बन रहा है। ठीक है, अब दैट यू द एड्रेसी इज लीगली बाउंड बाय लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, कहाँ से ये नोटिस आ रहा है हमने वो भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है,
लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट की वजह से दिस इज इम्पोर्टेंट, अंडर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। अब ये ना कंक्लूजन कर रहे हैं हम कि हमने फैक्ट्स और कॉज ऑफ एक्शन, और हमने ये भी बता दिया कि कहाँ से ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है कि आपको मुझे ये एरियर ऑफ सैलरी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम जब इसको समराइज करते हैं तो हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, अंडर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस you the addressee hereby is called upon to adhere to the letter of appointment and clear all the dues and arrears, okay। फिर हमने जो भी ऊपर ब्रेकेज लिखी है वो सारी ब्रेकेज यहाँ पे भी आएगी, एंड लास्ट में ये आ जाएगा दैट यू आर फर्दर इन्फॉर्म दैट इफ यू फेल, ठीक है, एंड इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट विद इन 1 month वी आर फ्री टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स अंडर सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, ओके। तो इस नोटिस में एक्चुअली हम सिर्फ नोटिसेस इसीलिए भेजे जाते हैं ताकि हम सामने वाले को इंटीमेट कर दें दैट वी आर गोइंग टू टेक लीगल एक्शन इफ he or she does not take appropriate action of acting or omitting any kind of action that we are expecting from them, ठीक है। if they do that then it is over. This is legal notice. Now let me come to another thing. This is a delay application which was filed in Saket court. Okay, this is a matrimonial case. This is a matrimonial case. इसमें condonation of delay was filed for PFRC. PFRC is your process form, ठीक है, registry of court, which is notice again. आपको जब notice कराना होता है कोर्ट से तो आप फाइल करते हैं प्रोसेस फॉर्म। जब आपकी प्लेन फाइल हो गई कोर्ट में तो कोर्ट अलाउ कर देता है कि आप पीएफ फीस जमा कराइए, पीएफ की फीस जाती है, प्रोसेस फॉर्म की फीस जाती है, आप जमा कराइए, हम समन्स काट के भेज देंगे एज अ नोटिस, ठीक है। तो अगर वो भी फाइल करने में लेट हो जाते हैं तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल होती है, कोर्ट फिर अलाउ कर देता है, ठीक है। तो ये उसकी है, देखिए कितनी छोटी एप्लीकेशन है, सिर्फ 3 पैराग्राफ की एप्लीकेशन है। ये स्मॉल एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत स्मॉल एप्लीकेशंस होती हैं। These are the things that you should learn like in snap of your fingers, because ये मतलब ये ऐसी चीजें होती हैं, ये आपको कोर्ट के प्रोसीजर्स में ना हमेशा ऑन टिप रखनी होती हैं, क्योंकि आपसे कोर्ट कभी भी मांग सकता है। ये आप कोर्ट में खड़े हैं, आपसे कभी भी बोल देंगे कि ठीक है आपको 1 hour का टाइम दे दिया, आप एक अपनी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके लाइए और फाइल कर दीजिए, ठीक है। तो फॉर दैट यू शुड बी वेरी वर्स विद योर एप्लीकेशन एंड ड्राफ्टिंग। दी स्मॉल एप्लीकेशंस आर वेरी सिंपल टू ड्राफ्ट, तो इनको ड्राफ्ट करने के लिए ना आपको फटाफट मतलब आप इस चीज में आपको पिकेबल होना पड़ता है। और आप इसका जो फॉर्मेट भी है ना इन स्मॉल एप्लीकेशंस का, दैट आर वेरी सेट फॉर्मेट। इन एप्लीकेशंस को सेट फॉर्मेट्स में रखा गया है, और ये जितनी भी एप्लीकेशंस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इनको सबको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसे ड्राफ्ट होती है, ठीक है। अब कैंसिलेशन ऑफ NBW इज नॉन बेलेबल वारंट। अगर आपको उसका कैंसिलेशन करना है तो उसके लिए भी एप्लीकेशन लगती है। मोस्टली लोग हाथ से लिख देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये, बट आई प्रेफर गोइंग बाय प्रॉपर प्रोसीजर एंड गिविंग अ प्रॉपर ड्राफ्ट टू द कोर्ट, सो दैट एक प्रॉपर आपकी मतलब, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी प्रेजेंटिंग इन द कोर्ट, तो प्रेजेंटेबल लगते हो आप, कोर्ट भी आपको सीरियसली लेगी, ठीक है। तो ये एक सेट फॉर्मेट है, ये भी एक सेट फॉर्मेट है। यू जस्ट हैव टू inculcate your reasons why your NBW should be cancelled, ठीक है। कोर्ट अलाउ और डिसअलाउ इसके बेसिस पे कर देता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे that subsequently the date was fixed on, आपने डेट लिख दिया कि किस डेट के लिए फिक्स है। accused had failed to appear before this honorable court। बेसिकली NBWs या वारंट्स तब फाइल हो जाते हैं, कोर्ट तब काट देता है वारंट जब आप फेलियर कर गए हैं प्रेजेंट होने में। क्रिमिनल कोर्ट्स में मोस्टली होता है ये कि अगर आप जैसे विदाउट टेकिंग प्रॉपर लीव आप अगर फेल हो गए प्रेजेंट होने में तो वो आपके वारंट कर देते हैं। और बहुत फ्रीक्वेंटली कैंसिलेशन ऑफ NBW हमें फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें भी यही हुआ था कि जो हमारा अक्यूज था वो फेल कर गया था प्रेजेंट होने में, तो we filed this application, और इसमें we just said that he was not aware of next date of hearing and was constantly trying to know the date and engage a counsel,
फॉर डिफेंडिंग द प्रेजेंट केस। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन अलाउ हो गई थी विद कॉस्ट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में जब आपको क्रॉस करना होता है ना सामने वाली पार्टी को जिसने आपका बाउंस चेक लगाया है, जिसने 138 फाइल किया है, जो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जिसने फाइलिंग की है, अगर आपको क्रॉस करना है तो आप उसके लिए ये एप्लीकेशन लगाते हैं। ये भी स्मॉल एप्लीकेशन है अंडर सेक्शन 145 क्लॉज 2। ठीक है, इसमें कोर्ट अलाउ डिसअलाउ कर देता है। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में एक क्लास लूंगी आपकी, इसलिए मैं इसको ज्यादा मतलब अगर मैं इसको ज्यादा आपको समझाऊंगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी, तो मैं इसकी एक डिटेल्ड अलग से क्लास ले लूंगी। नाउ ये है अर्ली हियरिंग की एक एप्लीकेशन, ये भी स्मॉल एप्लीकेशन है। ठीक है, ये हाई कोर्ट में जाती है, ये हाई कोर्ट की है क्योंकि हाई कोर्ट में जल्दी से आपका हियरिंग नहीं आती है, तो मोस्टली हम अर्ली हियरिंग फाइल करते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल एप्लीकेशन। हमें अर्ली हियरिंग क्यों चाहिए, और अगर हमें अर्ली हियरिंग नहीं मिली तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा, सिर्फ इन फैक्ट्स के साथ हम अर्ली हियरिंग फाइल करते हैं। जैसे इसमें ये एक पॉक्सो केस है। ठीक है, इसमें जो कॉन्विक्ट है वो पॉक्सो में है, कॉन्विक्ट सेक्शन 9। ओके, तो इसमें जो हमने अर्ली हियरिंग लगाई थी, हमने इसलिए लगाई थी क्योंकि जो दूसरा जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे वो सेक्शन 34 में था, कॉन्विक्ट, और दैट पर्सन हैज डन नथिंग। तो हमने कोर्ट को ये सेटिस्फाई किया कि दिस पर्सन हैज डन नथिंग, दैट इज व्हाई वी नीड अर्ली हियरिंग। ठीक है, तो हाई कोर्ट में यू हैव टू आर्ग्यू योर अर्ली हियरिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। ठीक है, विद अलॉन्ग विद लॉ। ओके, बट आपके फैक्ट्स इतने आर्ग्यूमेंटेबल होने चाहिए ताकि कोर्ट आपको अलाउ कर दे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जो कि 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर ही हो। अदरवाइज जो डेट्स होती हैं बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, दे कैन रेंज फ्रॉम 1 year to 10 years। ठीक है, दैट इज वाई अर्ली हियरिंग्स आर फाइल्ड। ओके, अब ये है एक, ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, ये मेमोरेंडम ऑफ एप्लीकेशन, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस। एक मिनट, ये एग्जेम्पशन एप्लीकेशन है, सॉरी, टू एग्जेम्प्ट माई सेल्फ फ्रॉम कमिंग इन टू द कोर्ट। अगर मेरा कोई क्लाइंट है वो कोर्ट में नहीं आना चाहता है, कंप्लेनेंट को 1 से 2 बार ही अलाउड होता है, लेकिन अगर अक्यूज पर्सन है उसको अलाउड नहीं होता है, तो अक्यूज पर्सन को ये फाइल करनी पड़ती है कि दैट मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं वायरल से सफर कर रहा हूँ या मुझे कहीं जाना पड़ गया है जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं अपियर नहीं हो पाऊंगा। कोर्ट मोस्टली अलाउ कर देती है इसको भी। और ये एग्जेम्पशन फाइल करनी इसलिए जरूरी होती है, अगर आपने ये नहीं फाइल किए तो आपके अगेंस्ट एनबीडब्ल्यू फाइल इसी एप्लीकेशन में, अगर ये एप्लीकेशन ओमिट हो जाएगी कोर्ट प्रोसीजर से तो आपके खिलाफ वारंट हो जाते हैं। तो आपको अगर इफ यू आर नॉट कमिंग टू द कोर्ट देन यू हैव टू फाइल एग्जेम्पशन एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्रिमिनल और सिविल केसेस में वहां पे ये डलती है जहाँ पे कोर्ट ने मैंडेटरी करा हुआ। अगर कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया और डिफेंडेंट या प्लेंटिफ के लिए अपियर होना, तो आप एग्जेम्पशन फाइल करते हैं। अदरवाइज सिविल कोर्ट्स में मोस्टली काउंसिल ही केस को परस्यू कर लेते हैं। ओनली एट द स्टेज ऑफ एविडेंसेस we require witnesses, otherwise we don't require anybody at the time of other stages going on. Okay, अब ये है leave to defend, this is a leave application. Okay, अब sorry, this is under order 17 rule 1 behalf of this is an adjournment application. Okay, you are seeking an adjournment from the court. Okay, if you are seeking an adjournment, you should if you are you are going to work as a proxy counsel for a long time if you're going to practice, so mostly जब आप as a proxy present होते हैं तो you should present yourself with a adjournment application and don't ask for adjournments on the regular basis without any ground. अगर रेगुलर बेसिस पे हम एडजर्नमेंट डिमांड कर रहे हैं कोर्ट से तो कोर्ट कॉस्ट भी लगा देती है और एडजर्नमेंट भी नहीं देती और एडवर्स ऑर्डर और कर देती है। So you have to take that in note, and these kind of application works in adjournment applications. ठीक है, let me see, this is LC application. This is also another short application. This is for appointing local commissioner.
if you want to have a local commissioner on your case, then you file this application under order rule 1 read with. Okay, and this goes with section 94 and 151. This is this extension application. This is application for extension in the period of paying the penalty. Okay, अगर मान लीजिए कोई पेनल्टी लगाई है या फाइन लगाया है और अमाउंट बड़ा है, या फिर ऐसा है कि आपके क्लाइंट के फाइनेंशियल बाउंड्रीज से बाहर है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप ये एप्लीकेशन लगाते हैं. ये सारी एप्लीकेशंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो दिक्कत मत लेना. एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर फॉर प्रीपोनमेंट. अगर मान लीजिए कि कोई डेट ले ली हमने गलती से और वी वांट कि उसको हमें प्रीपोन कराना है या पोस्टपोन कराना है, तब हम ये एप्लीकेशन लगाते हैं विद प्रॉपर रीजन एंड व्हाई आई वांट प्रीपोनमेंट और पोस्टपोनमेंट. तो मोस्टली ये एप्लीकेशन लगती है, बहुत रेयर केसेस में अलाउ होती है ये. तो ध्यान हम ये रखते हैं कि जब भी हम डेट लेने जाएं तो सही डेट ले लें अकॉर्डिंग टू आवर डायरी. ठीक है, लीगल नोटिस हो गया, डिले एप्लीकेशन हो गया. ठीक है, दीज आर स्मॉल एप्लीकेशन. इसके अलावा जो भी कोई छोटी एप्लीकेशन होगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगी. दीज आर मेन एप्लीकेशन, जो स्मॉल एप्लीकेशन होती हैं सिविल प्रोसीजर कोर्ट में जो फॉलो करती हैं, जैसे लोकल कमिश्नर लगाना हो गया, या फिर एक्सटेंशन लेना हो गया पेनल्टी पे करने के लिए, प्रीपोनमेंट चाहिए किसी डेट की, पोस्टपोनमेंट चाहिए किसी डेट की. तो ये स्मॉल एप्लीकेशंस आपको उसमें हेल्प करती हैं. और ये ड्राफ्टिंग, इसकी ड्राफ्टिंग जो होती है बहुत सेट फॉर्मेट की होती है, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग. So it becomes really helpful once you start doing it. Once you start drafting these applications, what I will do is for you guys is that I will draft a question for you and give the format as well. ठीक है, तो as a like एक एक्सरसाइज की तरह कर लेंगे कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी, आपको फॉर्मेट बता दूंगी, आप मुझे वो छोटी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके ईमेल कर देना. तो आई थिंक इस तरीके से आप ड्राफ्टिंग सीख लोगे, बिकॉज फिजिकली तो हम लोग अभी नहीं मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. अगर फिजिकली मिलते हैं तो फिर मैं आप लोगों से सामने बैठ के ड्राफ्ट कराती. तो दैट्स अ प्रॉब्लम राइट नाउ, बट व्हाट वी कैन डू इज मैं आपको एक प्रॉब्लम दे दूंगी, साथ में फॉर्मेट दे दूंगी, उस फॉर्मेट को कॉपी करते हुए आप ड्राफ्ट कर लेना. ठीक है, so this is all for today, and if there is any kind of any question, any query, you can tell me right now, then I will end this meeting. मैम अ बिट कंफ्यूजन. आपने जो एप्लीकेशन बताई पोस्टपोनमेंट और एडजर्नमेंट, तो पोस्टपोनमेंट और एडजर्नमेंट में डिफरेंस क्या है? Difference, दोनों में. okay. Okay, it's a very good question, and both these words are different from each other. Adjournment आप तब कॉज करते हैं जब आप एक्चुअली कोर्ट में हैं, आप कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं, तो आप एडजर्नमेंट कॉज करते हैं. और पोस्टपोनमेंट के लिए आप लेटर ऑन एप्लीकेशन लगाते हैं. मान लीजिए कि मैं आज प्रेजेंट हुई कोर्ट में, मुझे एक डेट मिल गई, ठीक है, लेटर ऑन जब मैंने उसे डायरी में चेक किया तो उस डेट पे मेरे सुप्रीम कोर्ट में केस लगे या हाई कोर्ट में केस लगे. ठीक है, आई कैन नॉट बी प्रेजेंट एट इन बोथ द कोर्ट्स एट द सेम टाइम. सो व्हाट आई डू इज आई फाइल अ प्रीपोनमेंट एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट आफ्टर, मतलब जब एक्चुअली मैंने हियरिंग आज ली और मैंने कल पोस्टपोनमेंट की एप्लीकेशन फाइल की. ठीक है, तो पोस्टपोनमेंट की एप्लीकेशन सेम डे फाइल भी हो सकती है, लेकिन पोस्टपोनमेंट की एप्लीकेशन डेट मिलने के बाद फाइल होती है. एडजर्नमेंट की ऑन गोइंग में फाइल होती है. मान लीजिए आज डेट है, मैं तैयार नहीं हूँ या मैं आउट ऑफ कोर्ट हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ, और मेरा जूनियर प्रेजेंट हो रहा है, तो मेरा जूनियर वो एप्लीकेशन लेके प्रेजेंट होगा ये कह के कि मैम इज नॉट प्रेजेंट इन द सिटी, दैट्स व्हाई वी आर मूविंग दिस एडजर्नमेंट एप्लीकेशन. तो हमको न्यू डेट मिल जाएगी, उसका पर्पस ये होता है. ठीक है, इज इट क्लियर? थैंक यू मैम. यस. Okay. Any other question?
Okay, there is this one question अनुष्का ने पूछा है, मैम appendix and exhibit are one and same thing. Okay, so exhibits are in evidence. Appendix is mostly filed where you are going to give some additional knowledge about something you are filing. ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एक बैंक स्टेटमेंट फाइल की है और उसमें कुछ ऐसे टर्म्स आए हैं जो मुझे समझाने हैं, ठीक है, तो मैं उसके साथ अपेंडिक्स फाइल करूंगी विद द नॉलेज दैट व्हाट दीज टर्म्स आर मेंट एक्चुअली. ठीक है, एग्जिबिट्स आर एग्जिबिट ऑफ दोस डॉक्यूमेंट. ठीक है, अब मान लीजिए मैंने जो बैंक स्टेटमेंट फाइल की है उसका जो ओरिजिनल कॉपी है मैंने फाइल किया है. ठीक है, तो वो जो ओरिजिनल कॉपी का पूरा डॉक्यूमेंट है दैट इज एन एग्जिबिट. ठीक है, एनेक्सर है वो, उसको एग्जिबिट करेंगे हम. दैट इज एन एग्जिबिट बिकॉज यू आर एग्जिबिटिंग. एग्जिबिट इज कमिंग फ्रॉम दैट एग्जिबिशन वर्ड ओनली. ठीक है, तो वेन एवर यू आर शोइंग समथिंग टू द कोर्ट दैट कम्स टू एग्जिबिट. अगर मान लीजिए उसकी फोटो कॉपी कर रहे हैं तो मार्क. ठीक है, अपेंडिक्स इज समथिंग, उसमें कोई ऐसी डेफिनेशन मुझे बतानी है कोर्ट को. ठीक है, तो कि मान लीजिए कि जैसे पीडीक्यू लिखा होता है कई स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स में, तो वो पीडीक्यू का मतलब होता है पोस्ट डेटेड चेक्स. ठीक है, जो पोस्ट डेटेड चेक्स होते हैं उनको पीडीक्यू. अब मुझे अगर ये डेफिनेशन समझानी है कोर्ट में तो मैं जो उसके साथ अपेंडिक्स फाइल करूंगी उसमें मैं वो लिखती हूँ. अपेंडिक्स तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर फाइल करते हैं तो वो अपेंडिक्स एक्चुअली में कोई एडिशनल नॉलेज देने के लिए होता है. ठीक है, ऐसे ही एक वर्ड होता है एडेंडम. ठीक है, तो एडेंडम का मतलब होता है एनी डॉक्यूमेंट विच इज एडिंग अप टू योर गिवन इन्फॉर्मेशन. अब मान लीजिए कोई प्लेंटिफ, आपने कोई प्लेंट फाइल किया या कोई पिटीशन फाइल की, suddenly you come up with additional information over some case. ठीक है, एक केस है उसकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई है, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं जो रह गए थे फाइल करने, तो आप एक अडेंडम फाइल करते हैं. वो अलाउ करता है कोर्ट और उसको अलाउ करके अडेंडम को साथ में रीड करते हैं उस प्लेन के और उस पिटीशन के. ठीक है, so there are two kind of things, one is appendix, one is addendum. ठीक है, then there is this exhibit. exhibit is like कि आप एग्जीबिशन कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की तो वो एग्जिबिट है. ठीक है, दैट्स व्हाई द वर्ड कम्स एग्जिबिट. एंड एफिडेविट है, तो एफिडेविट इज समथिंग वेयर यू आर गिविंग सर्टेन स्टेटमेंट अंडर ओथ. so you have to be understanding that अगर कुछ भी हमने गलत लिखा है एफिडेविट में तो you can be held for perjury. ठीक है, कोर्ट में ओथ पे अगर आप गलत बोल रहे हैं तो वो पर्जरी में आ जाएगा, पर्जरी के पर्पस में आ जाएगा. ठीक है, so this is how things go by. Any other questions? Okay, ma'am. Thank you. ये भी समझ आ गया है ना कि इसका डिफरेंस क्या है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, somebody else is speaking. Akshara is joining us very late. I think उसका मैसेज आया हुआ था. I think I haven't seen it right now. I've just seen it, so I've added her. अच्छा, जो भी जिन्होंने भी ऐड नहीं किया है अपने फ्रेंड्स को भी बोल देना, और जो भी है उनको भी बोल देना दैट this will be available on our Instagram page, our Facebook page, and on our YouTube page. So if anybody wants to go ahead and see this, they can. कोई क्वेश्चन कुछ है तो you just ask me, then I will end this meeting. No question, I guess. Okay, so thank you for joining me today. And I think it was a good experience for you guys. And like like yesterday, we had this conversation when a lot of people had time clashes problem. You can give me any 1 hour from your schedule
You can decide amongst yourself and give me that 1 or 2 hours. I will accordingly set up meetings and workshops according to that only, so that because this internship entirely means that you go with knowledge. Okay, even if it is online, because offline offline internships with me are very knowledgeable, because I send you course, I leave you in the court, and I just ask you questions about how your court hearings are going. Okay, this entire thing is meant to be like that only. But because we are online, that's why I want that whatever workshop or whatever meeting I'm taking, you just go, you just get as much as knowledge you can, so that whenever we are going in ground, having ground knowledge, and in court, at that point of time, you just don't feel out of court. You just feel one of the part. And whenever any advocate you are going to be part with in the next coming years, you'll be as good as I can make you. ठीक है, I want कि जिस भी एडवोकेट के साथ जाके खड़े हो, उसको खुद भी बताओ सर ये गलत कर रहे हो आप. ठीक है, so I want that to happen. ठीक है, so if there are any questions, I am here. If not now, later on, if you have, you can send me on WhatsApp group, then we can discuss over things. And I think there is this one girl which is going to join us. That is, let me see, Anshita. I think Anshita Gulati is going to join us very soon. I want one of you to take one step ahead and tell her that whatever we are doing in the internship, and let her join among us and show her everything, that whatever we have done till now, और उसको आर्टिकल्स में और जैसे भी जो भी अभी तक हमने बात की है उसके बारे में उसको पूरा नॉलेज देके उसकी हेल्प कर देना. ठीक है, एनीथिंग उसके अपार्ट एनीथिंग भी कोई भी चीज होगी, दैट विल बी एड्रेस्ड बाय मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, so this is it for today.